thesis, many of you must have been in the middle of it, and many of you must have been at the end of completion of your thesis. तो ये 7 दिनों में आपको जो भी inputs मिलेंगे, try to fine tune the quality of your research. So on the day when you submit the final copy and on the day when you face the Viva Voce examination, you will have confidence that the quality work that you are putting forward will definitely give you confidence. Otherwise आप अनकंफर्टेबल होके जाओगे. तो ये हो गया आपका 7 दिन का कोर्स. One Sir, more thing that voice is very low, sir. वॉइस इज लो. मेरा मैक्सिमम वॉल्यूम पे है यार. आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? मैं माइक्रोफोन को हाथ के पास रखता हूँ अभी. ओके. वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि इसके बाद आपकी एक ऑनलाइन एग्जाम होगी और वो एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा. वो जब आप उसमें पास होगे तभी आपको पीएचडी सेल में आपका थीसिस जमा करने की परमिशन मिलेगी. सो ड्यूरिंग माय सेशंस टुडे एंड टुमारो जो भी एग्जाम से रिलेटेड या सेंसिटिव मैटर या इम्पोर्टेंट मैटर होगा मैं उसे वर्बली हाईलाइट करूंगा. काइंडली टेक अ नोट ऑन योर नोटपैड सो दैट वो इम्पोर्टेंट चीजें हमें सेशंस में दिखने मिलेगी. आप ये सब पीपीटीज यूजीसी एचआरडीसी नागपुर के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो, या आपके पास टैब होगा तो टैब में भी साइमल्टेनियसली आप उसे देख सकते हो. राइट. So cracking exam is objective number 1. Learning about research, various aspects, objective number 2. And being patient and open and attentive to all the session is objective number 3. Right? So let's begin the session today. First and foremost, आप मुझे बताइए why do we do research? हम research क्यों करते हैं? मैं डिस्कशन ज़्यादा प्रीफर करूंगा क्योंकि अभी 2 साल हो गए हम ऑनलाइन ले रहे हैं. ऑफलाइन में तो मैं डिस्कस ज़्यादा करता हूँ, लेक्चर कम देता हूँ, बट वी विल स्टिल ट्राई टू डू दी discussion as much as possible so that you learn something from others and I also learn from you guys. Research क्यों करते हैं हम? What is the motivation of doing research? So maybe to learn something new. New thing, very good. What else? To find out new facts and verification of old facts. Excellent. And Discovering something. Very good. Very good. Anything else? Sir, fact finding. Fact finding. Excellent. Azun kai? On the basis of previous data, we try to find something new. Very good. We take the old data, time series data, and we try to throw some light to see if we get something new. Azun? To find solutions to problems. Excellent, Mishra madam. To find solution to the problem. So, as we know that research is a very diverse process. अरे पूरे का नहीं जाता है. हम एक मिनट का. Research is a very diverse process, and like all of you mentioned, there are n number of objectives to conduct a research, right? So Albert Einstein said that if we know something, what we are doing, it will not be a research, right? We are going into the unknown world. रिसर्च में हम क्या करते हैं? एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की हम कोशिश करते हैं, जो हम एकेडमिक रिसर्च की बात करते हैं. सो व्हाटएवर वी आर डूइंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीएचडी, probably half of it will be unknown, and then at the end of your completion you will be reaching so-called known but not the 100%. So research is very diverse. आपण 2 प्रकारच्या संशोधनावर बोलणार आहोत. एक आहे अकॅडमिक रिसर्च आणि दुसरं आहे तुमचं अप्लिकेटरी रिसर्च, ज्याच्यावर आपण उद्याही चर्चा करू. आता आपलं अकॅडमिक रिसर्च जे आहे ते यूजीसीच्या ऑर्डिनन्सनुसार गव्हर्न केलं जातं आणि विद्यापीठाच्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्याच्यानुसार आपल्याला आपलं संशोधन प्रबंध सादर करावा लागतो. सो अकॅडमिक रिसर्च इज रादर इझी. It is done purely for the sake of academic achievement. There are n number of motives among the people to do PhD. म्हणजे आता मी कॉर्पोरेट मधून आलो, पण मला वेळ होता, मी रिटायर्ड आहे म्हणून मी केली पीएचडी, पण मी माझ्या आवडत्या विषयात केली, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मध्ये, आणि त्याच्यात आमचं थोडं काम चालू.
So there are n number of motives to conduct the research. The Research Recognition Committee, RRC, across the India allows you to select any topic that you want. It could be multidisciplinary, it could be multi-geographical territories. You can even sit here in Nagpur and do the study in Antarctica, provided if you get a chance to go there once at least during 5 years is acceptable. So you are being given freedom to select any topic you want. But what I want you to understand is that रिसर्च मध्ये री हा शब्द आहे. रिसर्च इसका मतलब है फिर से जाके खोजिए. अगर पिछले रिसर्चर ने अलग मेथड का इस्तेमाल किया होगा, अलग सैंपल लिया होगा, अलग टेरिटरी लिया होगा, तो आप दूसरे सैंपल साइज लेके दूसरी मेथड लेके उसी डोमेन में वापस सर्च कीजिए. रिसर्च, पुनः शोधा. तो दैट इज अ वेरी सिंपलिस्टिक मीनिंग. रिसर्च करते समय हमें वी डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील. हमें पहिया खोजना नहीं है. जो पहिया किसी ने खोजा है उसी को हमें एक शेप देना है. सो जो जनरल डेफिनेशन आती है रिसर्च की is finding answers to the question in organized, logical and systematic fashion, right? Day to day we have n number of questions in our life, right? But जब हम रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च या एप्लीकेटरी रिसर्च की बात करते हैं तो हम कुछ सवालों के जवाब खोजने की गुंजाइश करते हैं 5 सालों में. वो करते समय हमें ऑर्गेनाइज रहना है. ऑर्गनाइज का मतलब ये है की त्याला आपण पुढे जाऊन शास्त्रशुद्ध पद्धत म्हणतो, ज्याला सायंटिफिक रिसर्च म्हणतात ना, तो त्याच्यातला एक भाग आहे ऑर्गनाइज. म्हणजे तुमचं नियोजन हे व्यवस्थित असलं पाहिजे. दुसरं जे मला महत्वाचं वाटतं, तुमच्या संशोधनामध्ये तर्क असणं आवश्यक आहे साहेब. संशोधनात जर तर्क नसेल तर मग ते संशोधन एक डिस्क्रिप्टिव्ह स्टडी होतं. आता बरेचदा मला विद्यार्थी विचारतात की साहेब आमचा आर्ट, हिस्ट्री, लिटरेचरशी संबंधित प्रबंध आहे. काही हरकत नाही. रिसर्च म्हणजे फक्त प्रायमरी डेटा घेऊन करणं नाही. तुम्ही सेकंडरी डेटावर सुद्धा त्याचं विश्लेषण जर योग्य पद्धतीने केलं, त्याच्यात जर तर्क मांडलेत, तर मग त्या संशोधनाची व्हॅल्यू, मूल्य याच्यामध्ये वृद्धी होते. त्याच्यामुळे everyone must remember that you have to have a logical argument in your research. Unless and until it is present there, it won't be called as a research. हे बघा, ही एकमेव अशी डिग्री आहे जिथे तुमचं रजिस्ट्रेशन झाल्यावर तुम्हाला विद्यापीठाला ही द्यावीच लागते. याच्यात कोणी फेल होत नाही. मग एवढी जर सर्टन्टी असेल तर मग आपल्याला चांगलं काम करण्यासाठी मोटिवेशन मिळालं पाहिजे. That we are going to get this degree anyway. So if we are certain, then we should put all the effort in organizing our research, putting a logical argument in that, and lastly doing it in a systematic fashion. Systematic fashion चा अर्थ असा आहे, मी तुम्हाला पुढे एक सांगेल, एक मोठी स्लाइड येईल त्याच्यात मी तुम्हाला सांगेन. तर सोप्या भाषेत म्हणजे जेव्हा तुम्हाला जेवण दिलं जातं किंवा तुम्ही एखाद्या पार्टी बुफेमध्ये जाता तर यू स्टार्ट विथ ॲपेटायझर, ज्याला आपण स्टार्टर म्हणतो, सूप, सलाड. देन यू गो फॉर दी मेन कोर्स अँड देन यू गो फॉर दी डेझर्ट, राईट? तर ती एक पद्धत आहे जेवायची. तसंच संशोधन करताना सुद्धा आपलं संशोधन हे सिस्टमॅटिक पद्धतीने झालं पाहिजे. का? जेव्हा तुम्ही सिस्टमॅटिक पद्धतीने कराल, तुमच्या चुका व्हायची, तुमच्या त्रुटि कमी होतील, चुका कमी होतील और इसकी गुंजाइश, मैं 0 तो नहीं कहूंगा बट लगभग 10% से कम हो जाएगी. मतलब आप 90% एक्यूरेसी की तरफ जाओगे. इसको मैं आगे चल के इलेबोरेट करूंगा. अब कई लोगों के मन में, स्पेशली हमारे साइंस के लोग होते हैं, कॉमर्स के लोग होते हैं, मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनको लगता है कि एट द एंड ऑफ माय थीसिस आई विल गेट द ट्रूथ. नहीं, आप रिसर्च करने के बाद सच्चाई तक पहुंच नहीं पाएंगे. रिसर्च एक केवल एक जर्नी होता है
केवल एक एक्सरसाइज होता है, ये मंजिल नहीं होती. नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑल these vaccines, मॉडर्ना, फायझर, कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन, J&J. यांची एफिकसी किती आहे हो? यांची एफिकसी फक्त 74 ते 80% आहे. No vaccine is 100% curable. I mean, if you take it, it will not guarantee you that you will not get COVID. So they say that 74, 75, 76, 77, 70, 80% तक efficacy है. Efficacy चा अर्थ म्हणजे काय? The ability of that particular vaccine to generate antibodies in your body and protect you from the coronavirus. So in real life, there is no such thing as 100%. Kindly keep this in mind. There is nothing. जगामध्ये 100% काही नाहीये. आता इथल्या ज्या भगिनी आहेत, तुम्ही आता सोनं घ्याल दिवाळीत, सोन्याची प्युरिटी किती असते? 99.9999. Nobody will say मेरा सोना 100% खरा आहे. 100% हा कन्सेप्ट जो आहे ना, हा संशोधनात आपल्याला विसरावा लागतो. लिटरली there is no such thing. If you can achieve anything above 70%, you are damn good researcher. आणि म्हणून तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपण जेव्हा स्टॅटिस्टिकल टूल वापरतो, आपण त्याच्यात कॉन्फिडन्स लेवल इंटरवल किती वापरतो? मॅक्सिमम 95%. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ माझा डाटा ज्याच्यावर जी मी टेस्ट लावेल स्टॅटिस्टिक्सची, त्याचा रिझल्ट हा 95% ॲक्युरेट येईल. म्हणजे इवन इन स्टॅटिस्टिक्स वी डोंट हॅव 100% कॉन्फिडन्स इंटरवल लेवल. सो whichever way you conduct the research, कई बार मैंने देखा है, मैं अभी कोविड के बाद मार्च 2020 के बाद मैं वाइवा वगैरह अटेंड नहीं करता, बट उसके पहले मैंने बहुत अटेंड किए, बहुत, नागपुर में, अमरावती में, जलगांव में. तो कई बार बेचारा कैंडिडेट आता, वो पूरे के पूरे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करता या पूरे के पूरे रिजेक्ट करता. तो ठीक है, आई मीन इट शुड नॉट हैपन. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, बट अगर आपके इसमें आपने को सही बनाए होंगे पहले से, जो कि गुंजाइश काफी कम होती है, क्योंकि बेचारे कैंडिडेट को मालूम नहीं रहता है कि मैं हाइपोथेसिस कैसे बनाऊं और उसको टेस्ट कैसे करूं. वो भी आगे मैं आपको इलेबोरेट करूंगा. सो स्पेशली आई एम अलर्टिंग दी साइंस पीपल नॉट टू गो फॉर 100%. बाकी सोशल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सब्जेक्टिव टॉपिक्स होते हैं इनके, इसमें भी आपको पूरी सच्चाई नहीं मिल सकती. Right? So while conducting the research, please keep in mind that it is only a journey. And what is the beauty of this journey is that, say for example, मीनल राजदेव मैडम ने एक रिसर्च किया, 2022 में सबमिट किया, और 2028 में और एक कोई आया, गजानन ठाकरे, उन्होंने मीनल मैडम के रिसर्च को आगे लेके गया. फिर 2030 में और कोई आया, वो ठाकरे साहब की रिसर्च को और, दैट इज कॉल्ड इट एज एकेडमिक कॉन्ट्रीब्यूशन. तो हमेशा कोई भी रिसर्च को, इसलिए ये वर्ड री जो है ना, वो इसीलिए दिया हुआ है कि आप उसको फाइन ट्यून करो जब तक आप हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में जाओगे और कहोगे कि हाँ, यही शायद तथ्य हो सकता है, यही शायद सच्चाई का सबसे पहला पड़ाव हो सकता है. फिर भी आप 100% सच्चाई नहीं बोल सकते. जब भी मेश्राम मैडम ने बोला था, it should address the long standing problems in specific domain, and this is the most important aspect of academic research. 2009 में जब कपिल सिब्बल साहब यूनियन एचआरडी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने देश के पूरे वाइस चांसलर लोगों को दिल्ली में बुलाया था, और उसके बाद 2011 में एक गाइडलाइन फॉर्म की गई, और वो गाइडलाइन में ये बताया गया, every university must conduct the research, whether academic or applicatory, in the problems they are facing in the specific region. So take example of Nagpur University. अपन अमरावती को टाइम बिंग छोड़ देंगे. अमरावती पश्चिम विदर्भात येते, नागपूर पूर्व विदर्भात येते, आणि आपण गोंडवानालाही सोडून देऊ, कारण गोंडवाना एक नवीन विद्यापीठ आहे. तर आपले जे जिल्हे आहेत पूर्व विदर्भातले, मुझे बताओ नागपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्याएं हैं उनको, सांगा ना, काय प्रॉब्लम्स आहेत? Sir, farmers' suicide was a big issue. एक्सलेंट, वेरी गुड. और
और बेटियों का भी प्रॉब्लम है, लड़की का। वेरी गुड, जेंडर इश्यूज, वेरी गुड। और बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है सर नागपुर में। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड। यस। और As well as many more problems in this agriculture sector. सॉरी, नो रिसर्च, क्या बोला आपने? एग्रीकल्चर क्या बोला? Many more problems in agriculture sector. Yes, we have a distress in agriculture. We don't have enough irrigation in our area. We Yes. have environmental problem. We have traffic congestion in urban areas like Nagpur. So, ये जो प्रॉब्लम होते हैं, ये प्रॉब्लम को अगर हम हमारे पीएचडी रिसर्च से अगर कहीं ना कहीं एड्रेस कर पाए, तो शायद इन दुविधाओं का हल या समस्या निकालने के लिए कहीं रास्ता खुलेगा। मैं भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2000, अभी मुझे याद नहीं, 17, 16 या 17, 18 ऐसा होगा, हम लोग दापोली गए थे, रत्नागिरी, दापोली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। एक काम चल रहा था गवर्नमेंट का, तो वी हैव टू मीट दी वाइस चांसलर देयर। सो हमारी विजिट हुई, डिस्कशन हुए। तो वीसी साहब ने हमको पूछा कि विच इज द बेस्ट मैंगो इन द वर्ल्ड। तो हमने कहा हम रत्नागिरी में आए तो नॅचरली इट हॅज टू बी अल्फान्सो, याला आपण हापूस आंबा म्हणतो। तर ते म्हणे नाही, दापोली विद्यापीठाने हापूस आंब्यापेक्षा 5 पट चवीने चांगला असलेला आंबा शोधला तिथल्या विद्यार्थ्यांनी रिसर्चमध्ये। बरं, तो नॅचरल याच्यात शोधला बरं का, असं नाही की त्यांनी जेनेटिकली मॉडिफाईड केला। इट वॉज देअर, but it was never been tested, it was never been recorded, and then they found out that this is of superior quality than the Alfonso. Now the question immediately came ki how do we shift all the farmer from existing Alfonso to new species? मग त्याच्याकरता कलम बनवा, मग आंब्याचं झाड तुमचं कमीत कमी 5 वर्ष लागतं लहान फळ द्यायला, 8 वर्षानंतर ते मोठी फळ द्यायला लागतं, मग ते 30 वर्ष चालतं ते झाड। So it's a long exercise and they are doing it gradually. अगर आप अपने विदर्भ में अगर देखते हो, मैंने एक स्टडी किया था वेस्टर्न विदर्भ में, स्टार्टिंग फ्रॉम नागपुर, जहाँ कलमेश्वर से लेके हम आगे मोर्शी वरुड तक गए, ऑरेंज के बारे में। मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, बट फॉर्चुनेट था कि मैंने उसमें काफी काम किया। अब बीच में क्या हुआ, वाटर लेवल डाउन चले गए, ऑरेंजेस का प्राइस जो था मार्केट में वो ड्रास्टिकली कम हो गया, तो लोगों ने संतरे से वो मौसम्बी की तरफ शिफ्ट गए। आज भी आप अगर कलमेश्वर, काटोल जाओगे, नरखेड़ जाओगे, तो आपको शिफ्टिंग दिखेगा। फार्मर लोगों ने 20, 25, 30% तक दे वेंट फॉर मौसम्बी, बिकॉज मौसम्बी यील्ड्स बेटर फायनान्शियल रिटर्न्स कम्पेअर्ड टू दी ऑरेंजेस। आणि ऑरेंजचा एक कॉम्प्लेक्स इश्यू आहे, पण याच्यावर सुद्धा आपल्या विद्यापीठातनं एक प्रबंध झाला होता। एंड देन देयर इज अ सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो अमरावती रोड पे जो है ना, सेवा मारुति के पहले लेफ्ट हैंड साइड में कॉटन के सामने उनका एस्टेब्लिशमेंट है। सो लॉट ऑफ रिसर्च एंड दे आर बेसिकली डूइंग इट फॉर अवर ड्राई लैंड। एक्चुअली वो जो बेल्ट है काटोल नरखेड़ से लेके वरुण मोर्शी, वहाँ पानी बहुत था, बट अभी धीरे धीरे पानी का लेवल कम होते जा रहा है, तो ऑरेंजेस को सर्वाइव होना डिफिकल्ट जाएगा। सिमिलर रिसर्च एक किया है, ईरी नाम की इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। लो क्या कहते हैं, लो वाटर कंझ्युमिंग राईस। तुम्हाला माहिती आहे का, थोडा आता ॲग्रिकल्चरवर 1-2 मिनिटं बोलतो म्हणजे तुम्हाला कळेल याच्यातले मुद्दे। आपण नेहमी ऊसासाठी ओरडतो पश्चिम महाराष्ट्रात की ऊसाला पाणी लागतं, ते ते खरं आहे, पण सगळ्यात जास्ती पाणी जे लागतं ते पीक आहे तांदूळ। फॉर्चुनेटली अपने ईस्टर्न विदर्भ में, आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ईस्टर्न इंडिया में रेनफॉल हेवी होता है, तो हम उसमें रेनफॉल पे हम वो राइस का क्रॉप लेते हैं। वेरएज फॉर शुगर केन वी नीड इरिगेटेड लैंड एंड कैनाल्स। तो एक मीटिंग में मैं था, तो वहाँ पे वो एक साहब बता रहे थे, ते आंकड़े विसरलो मी माहिती का। ये कोरोना के बाद क्या हुआ, मेरा जनसंपर्क बहुत कम हो गया है, तो अभी मैं लोगों से मिल नहीं पा रहा हूँ। If I am not mistaken, 1 kilo of rice require 8 kilo of water. तो he was very well known agriculture economist, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने ये पानी का इस्तेमाल कहीं और करना चाहिए और हमने राइस इंपोर्ट करना चाहिए।
फैक्ट है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इवन बॉटनी जूलॉजी के भी लोग कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लेम होगा, जैसे एक मेरी स्टुडंट आई थी प्री पीएचडी में, वाघ, विदर्भातलं वाघ जे पॉप्युलेशन मध्ये कमी झालं होतं, आता थोडं वाढलंय. तो वो जूलॉजी की थी, वो शेरों के टाइगरों के पॉपुलेशन के ऊपर उसका पीएचडी का थीसिस था, विच आई रियली लाइक. सो आप जब लोग आपका पीएचडी कंप्लीट करोगे, जब आप गाइड बनोगे, तो काइंडली कीप दिस इन माइंड दैट अगर आपका थीसिस अभी इसको एड्रेस कर रहा है तो इट इज वेल एंड गुड. सो इट शुड एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम. नाउ वी एज ए ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑलवेज अ क्यूरियस स्पीसीज. हम बहुत क्यूरियस है. आप अगर एंशियंट सिविलाइजेशन देखोगे, इवन बिफोर सिविलायझेशन हम लोगों ने पत्थर के टूल बनाए. आधी आपण कंदमुळं खायचो, मग त्यांनी शिकार करायला सुरुवात केली, मग त्यांनी शेती करायला सुरुवात केली. ग्रेजुअली हम आगे चल के आए. आज जब हम 21वीं सदी में बैठे, कई चीजों की खोज हो चुकी है, फिर भी कई चीजें हैं जिनकी और खोज होना बाकी है. आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि 2 साल पहले डॉक्टर लोगों को, ये एमबीबीएस वालों को, मेडिकल साइंस में ये पता चला अपने ह्यूमन बॉडी में और एक ऑर्गन है, एक और ऑर्गन है जो बहुत कम काम करता है और जिसमें प्रॉब्लम नहीं आता. अब आप अगर मेडिसिन साइंस लोगे तो जितने डॉक्टर है वो हर ऑर्गन का एक बनता है. हड्डी का ऑर्थोपेडिक, बच्चों का पेडिट्रिशियन, हार्ट का कार्डियक वाला, ब्रेन का न्यूरो वाला, उनकी लंग का आपका गैस्ट्रोएंटरो सॉरी पल्मोलॉजिस्ट, आपका पेट का गैस्ट्रो, तो उनको एक ऑर्गन पता चला. एंड व्हाई दे फाउंड आउट? बिकॉज ऑफ द एमआरआई. अभी पिछले 20 साल से हम लोग एमआरआई कर रहे हैं. ये कोविड के टाइम जो सीटी स्कोर वगैरह निकालते थे ना, thanks to the imaging technology. So we as a species are always in quest for searching the truth. Initially ये कैसा चालू हुआ? It started with tradition, custom and authority. जो छोटे छोटे किंगडम थे, take example of Greek empire, take example of Roman empire, take example of Persian empire, इन लोगों ने खोज की, राइट? सो मुझे बताइए, धरती गोल है, ये खोज किसने की थी? पृथ्वी गोल आहे हे कोणी सांगितलं हो? सांगा, चुकीचं असेल तरी सांगा, लाजू नका, काही होत नाही. आपल्याला कळलं पाहिजे. आर्यभट्ट. नॉट आर्यभट्ट. आर्यभट्ट ने 0 दिया था. गॅलिलिओ सर. गॅलिलिओ. नॉट गॅलिलिओ. कोपर्निकस. येस, कोपर्निकस. कोपर्निकस. करेक्ट. आणि मंगेश, कोपर्निकस सोबत काय झालं? त्याला चुकीचं असं धर्मग्रंथामध्ये पृथ्वी मध्ये शक्ती आहे असं सांगितलं आणि त्यांनी धर्माविरुद्ध बोलल्यामुळे त्याला मग फाशी देण्यात त्याला मारलं. आता त्याला फाशी दिली की फूड पॉयझन दिलं हे आपल्याला माहित फूड नाही. पॉयझन सर. म्हणजे त्याला मृत्यूदंड दिला. त्याला मृत्यूदंड मिळाला. व्हाय? Because he could not substantiate the fact that Earth is spherical. That brings us to the most important aspect of the research is that whatever you do in your academic or applicated research, you have to quantify it. तुम्ही जर त्याला क्वांटिफाय नाही करणार तर मग लोकांना ते पटणार नाही. मी जर म्हटलं मंगेश मूर्ख आहे किंवा मंगेश खूप चांगला आहे, हा माझा पर्सनल ओपिनियन आहे, मी मंगेशला ओळखतही नाही, पण जर मी क्वांटिफायनी प्रूव्ह करून दाखवलं की मंगेश चांगला काय किंवा मंगेश मूर्ख काय, तर मग तुम्ही माझ्या मताला सहमती द्याल. अदरवाइज इट इज जस्ट अ ओपिनियन, अ जजमेंट और अ बायस्ड कमेंट. इसलिए रिसर्च करते समय आप आपके आखिरी के चैप्टर में कंक्लूजन रिकमेंडेशन में जो डालोगे, it should be backed by your previous chapter, which is a statistical test which you have done on your data and what is the outcome of data and why you are concluding and recommending falana falana. So पुराने टाइम ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी. एंड कोपरनिकस ही हिमसेल्फ विटनेस दैट, बिकॉज उस समय ग्रीक के जो राजा थे वो ये बिलीव करते थे कि सन इज नॉट द एपिसेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, रादर अर्थ इज अ एपिसेंटर एंड सन रिवॉल्व्स अराउंड इट, व्हिच वाज रॉन्ग. बट वो लोग पावरफुल थे
तो उन्होंने कोपरनिकस की बात को नहीं माना. सो ऐसे कई एग्जाम्पल है जहाँ पे चीजों को क्वांटिफाई नहीं किया गया एंड एज अ रिजल्ट कई लोगों को एक तो ह्यूमिलेशन हुआ या अपनी जान गंवानी पड़ी. द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसको हम लूजली इंपीरिकल एविडेंस बोल सकते हैं. लूजली. नाउ पर्सनल एक्सपीरियंस से कई सारी चीजें बाहर आई है. And one of the best example of personal experience to me is a Archimedes. काय केलं होतं हो आर्किमिडीजनी? What Archimedes did? आर्किमिडीजचा जो सिद्धांत आहे तो काय आहे आणि तो सिद्धांत कसा बाहेर आला? कोणी सांगू शकाल? सायन्सचे लोक किंवा नॉन सायन्सचे लोक? तुम्ही सगळे शिक्षक आहात, त्याच्यामुळे आपल्याला तर थोडं कळलं. तो आंघोळ करताना त्याला तो एकदम एक्सपिरियन्स झाला आणि त्याने युरेका म्हणून तो ओरडत आला. त्याला त्यावेळी ते सोन्याचं, राजाने त्याला एकदा सोन्यामध्ये किती मुकुटमध्ये किती सोनं आहे हे शोधायसाठी त्याला सांगितलं होतं. तर त्याला तो पर्सनल एक्सपिरियन्स आंघोळ करताना झाला. ओके, आता युरेका हे आयझॅक अल्बर्ट आइन्स्टाईननी म्हटलं होतं. तुम्ही 20% करेक्ट आहात. व्हॉट आर्किमिडीज डिड, वन डे ही वेंट फॉर अ बाथ. तो आंघोळ करायला बाथ टब मध्ये गेला. बाथ टब मध्ये तो उतरल्यावर त्या बाथ टब मधून पाणी बाहेर आलं. बाथ टब भरला असेल. जेव्हा पाणी बाहेर आलं तर आर्किमिडीजनी विचार केला की माझं वजन समजा 80 किलो आहे, तर पाणी जास्त बाहेर का आलं? आर्किमिडीजनी परत तो केला, त्यांनी ते पाणी मोजलं अँड ही रिअलाइज दॅट दी weight or volume of the water displaced by the weight of the body is equal to or more than the weight of the body, and that lead to the principle of buoyancy. Buoyancy असते, ते तुम्हाला वर फेकतं buoyant force, and that is what Archimedes principle is. आणि आर्किमिडीज प्रिन्सिपलची अप्लिकेशन काय झाली? जुन्या काळी ज्या बोटी होत्या त्या फक्त लाकडाच्या होत्या, कारण लाकूड पाण्यावर तरंगतं आणि लोखंड पाण्यामध्ये बुडतं. The moment Archimedes principle came out, people started making ships out of iron. जेव्हा तुम्ही आता हे जे मागच्या आठवड्यात कॉर्डिला झालं, अरे बोलू नका मध्ये, मला आवाज येतोय, म्यूट करा तुम्ही. हे जे कॉर्डिला प्रकरण झालं, ती कॉर्डिला शिप तुम्ही बघितली का? लोखंडाची बनलेली आहे. एक बडी शिप जब अरे भाऊ, मध्ये कोणतरी मायक्रोफोन म्यूट करा, मेरे को बहुत आवाज आ रही है. ओम प्रकाश सर, तुमचा माईक ऑन आहे. बंद करा, मला आवाज येतो. ते मागे बोलतायत. अरे रिसर्चवर लक्ष दे बाळा. ओम प्रकाश सर. हाँ, okay. So when you see a big iron ship standing in the middle of the ocean, it is nothing but the application of Archimedes principle. अरे अजून कोणतरी बोलतोय, संबंध नाही आता हे होता. अरे कोण ओम प्रकाश बोलतोय? सर, ओम प्रकाश. माझी लिंक डिस्टर्ब होते ना भाऊ. मला शांत राहा ना, 1.5 तास शांत राहा. ब्रेक मध्ये बोलून घे ना बेटा, नंतर टेक्स्ट करा तुम्ही. वर्बल मला ऐकू नका येऊ असं बोला. आता काय होतं ना, बाकी विद्यार्थ्यांचा वेळ जातो. हा, सो दिस वॉज समथिंग दॅट लेड टू मेनी इन्व्हेन्शन्स. इवन मी जेव्हा गमतीने आपल्या वराडात MBA च्या मुलांशी आयझॅक न्यूटन सर त्यांना म्यूट करायला सांगा प्लीज. किंवा लिंक करून द्या सध्या, मग ते स्वतः जॉईन करतील. अरे नरेंद्र मोदी से बात कर रहे क्या? ये इम्पॉर्टंट है ना आपकी PhD. बरं जाऊ द्या, मी बोलतो. हा, न्यूटनचा एक पर्सनल एक्सपिरियन्स मी आपल्या गमतीने बोलतो. न्यूटन झाडाखाली बसला होता, खाली पडलं. न्यूटनने विचार केला की आपण खाली का पडलो. बेसिकली लीड्स टू दी. हॅलो निखिल सर. हा बोला. सर तुमचा आवाज खूप कमी येतोय. तुम्ही तो मायक्रोफोन जवळ, एकदम माईक जवळ. हो हो, आला, तो खाली गेला होता. हा, सो Newton also experienced the apple falling from the tree and he gave a thought to it.
and that led to the concept of gravity. G is equal to 9.8 G value आपण वापरतो ना. So n number of outcome or finding came from the personal experience. अब अपने मराठवाड़ा विदर्भ में, इवन मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, बाकी स्टेट तो है छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल, हम काली जादू, अंधश्रद्धा, काही लोकांच्या अंगात देवी येते, काही लोकांना भूत प्रेत दिसतात असेल, पण कॅन वी प्रूव्ह इट बाय सायन्स? अँड दिस इज वेअर दी सायन्स टेक सुपरसीड्स दी ट्रेडिशनल एक्सपिरियन्स. काही लोक बोलते बिल्ली आडी गई तो काम नाही होता. अरे पण बाबा काय, तू मला वैज्ञानिक दृष्ट्या प्रूव्ह करून देशील का? किंवा तू तिथे जाऊन 10 लोकांचं सॅम्पल घेशील आणि विचारेल आपका काम हुआ क्या, 9 लोकांनी सांगितलं नाही हुआ, तर तू म्हणशील का येस ये सायंटिफिकली प्रूव्ह हो गया, बिल्ली आडी गई तो काम नाही होता? याच्यात कोणतंही तथ्य नाही साहेब. आपण विज्ञानाच्या युगात जगतो आहे. व्हॉट एव्हर यू एक्सपिरियन्स, इफ यू कॅन प्रूव्ह इट सायंटिफिकली, जे आपण डिडक्टिव्ह आणि इंडक्टिव्ह रिझनिंग मध्ये बघू, then your finding becomes a valid and academic peers will respect you for that finding. Now, in University of Texas at Austin, the student wanted to find the so-called भूत पिशाच. भूत पिशाच काय असतो हो? इट इज अ एनर्जी. आत्मा आपण ज्याला म्हणतो मराठीत, आत्मा हा नथिंग बट एनर्जी. आपला जेव्हा मृत्यू होतो तेव्हा शरीरातनं आत्मा हा निघून जातो आणि आपलं शरीर हे निर्विकार असतं. मग त्याला ते दफनवतात, जाळतात, जे आपल्या पद्धतीनुसार असतात. मग प्रश्न येतो की हा आत्मा कुठे जातो? आता मागच्या आठवड्यात पितृपक्ष होता, श्राद्ध वगैरे केली लोकांनी, दैट इज ठीक, वो ट्रेडिशन है. मैं साइंस के बेस पे उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, कारण आई एम अ हार्डकोर साइंटिस्ट, हार्डकोर साइंटिफिक ओपिनियटेड पर्सन. इन टेक्सास व्हाट द स्टूडेंट डिड, दे वहां पे कोई एक भूत बंगला था, वहां पे अमावस की रात को वो भूत प्रेतों का आवाज आता था, वो बर्तनों को हिलाते थे, कई कहानियां थी. सो दी स्टूडेंट्स, ये रिसर्चर लोग थे, दे वेंट देयर. और ये आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, और शायद कई बार ये हिस्ट्री या नेशनल जियोग्राफी पे भी आता है. 2-3 महीने में एक आध बार वो आपको दिख जाएगा. यूट्यूब पे 100% मिलेगा. What they did, they basically set up the infrared camera that could capture the magnetic and electric strength of the field. And in that document, in that experiment, they could really see that it is एखादं वलय म्हणा असं धुकत दिसतं ते, कारण रात्रीचा वेळ असतो, अंधार असतो, पण ते येऊन एखाद्या ग्लासला लागतं, मग तो ग्लास पडतो वगैरे. सो इट इज अ एनर्जी. ते एखाद्या कोपऱ्यात असतं आणि दुसऱ्या दिवशी जर तुम्ही गेला अमावस्येच्या नंतर, ते तिथे नसतं, ते फक्त अमावस्येच्या रात्री तिथे येतं. सो दे कुड प्रूव्ह इट बाय येस, समथिंग लिव्स हिअर which is nothing but a form of energy. So they measure the strength of that electrical field, they measure the strength of the magnetic field, and then they compare with another. So they found out that वेगवेगळ्या भूत पिशाच मध्ये वेगवेगळी स्ट्रेंथ असते. हे फक्त माणसांचं नसतं, तर त्याच्यात जनावर सुद्धा होती, गाय होत्यात, नंतर मला वाटतं अजून काही त्यांचे वेगळे प्राणी होते. सो इट इज देअर. So personal experience is one of the biggest driver of quest for searching the truth. हमारे रिसर्च के लिए हम डिडक्टिव इंडक्टिव, जो एग्जाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, वो मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा. एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, इसको हम रिसर्च कहते हैं. इट इज नथिंग बट अ साइंटिफिक इंक्वायरी. नाउ while conducting the research, a researcher should have the imagination. दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म. अब मैं मेरा एक इंडिविजुअल एग्जांपल देता हूँ. मैं 1994 में एमबीए करने यूरोप में गया था. यूरोप और एशिया में हमारा जॉइंट एमबीए था उस वक्त. तो हमारी एक फैकल्टी थी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आए थे डेप्यूटेशन पे. वो हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाते थे. एक दिन आए और अचानक, अच्छा 3 घंटे की क्लास होती थी, वो स्टेयर केस वाली राउंड सर्कल वाली क्लासरूम वगैरह थी. और एक दिन अचानक हमारे फैकल्टी ने बोला, प्लीज टेल अस योर बिग ड्रीम. तो हमको लगा, हम इंडिया के 7-8 लोग थे, तो हमको लगा यार आज ये फैकल्टी को पढ़ाने का नहीं है, टाइम पास करना है, ये क्या पूछा. तो नेचुरली लॉट ऑफ स्टूडेंट, अब फैकल्टी ने बोला है तो बताना पड़ेगा. तो आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू अ गर्ल फ्रॉम चाइना, वो चाइनीज लड़की थी. जब उसका नंबर आया तो वो खड़ी हुई और उसने बोला कि मेरा ड्रीम है कि हवाई जहाज जो होता है
अगर ऊपर एक्सीडेंट होता है या फायर हो जाती है या कुछ माल फंक्शन होता है तो पूरा वो एयरक्राफ्ट नीचे आके सब लोग मर जाते हैं। तो वो बोली मेरा ड्रीम ये है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो हवाई जहाज के ऑटोमेटिक 3 टुकड़े होने चाहिए और पैराशूट खुलना चाहिए और वो 3 टुकड़े धरती पर आना चाहिए। तो हमको लगा यार इसने अपना ड्रीम ऐसे ही बता दिया होगा, तो दैट टाइम वी टुक इट वेरी लाइटली। आज वो लड़की कनाडा में गई है, शी इज अ कैनेडियन सिटीजन। आज उसके नाम पे ये पेटेंट है और उस तरीके का प्लेन शायद अगले 10-20 साल में बन सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इमेजिनेशन। अब आप बोलोगे सर इसका हमारे थीसिस से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। आपका जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आप उसको जितना इमेजिन करोगे, जितना उसके बारे में आप चिंतन करोगे, उतनी राहें आपकी खुलती जाएगी, उतना आपको रास्ता आगे जाने का मिलेगा। अदरवाइज इट विल सिंपली बी एन एक्सरसाइज ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क एंड गेटिंग द डिग्री, बट इट वोंट हैव एनी वैल्यू। आपको वो टाइटल मिल जाएगा पीएचडी का, बट वो सब्जेक्ट पे या वो टॉपिक पे आपकी मास्टरी या कमांड जो है वो शायद उतनी नहीं आ सकेगी जितनी आपको पैशनेटली इमेजिनेशन करके आ पाएगी। दैट इमेजिनेशन इज ओनली इन आवर ब्रेन, राईट? ते तुम्ही, मी आईन्स्टाईनचा खूप मोठा फॅन आहे। युरेका हे आईन्स्टाईननीच म्हटलं होतं जेव्हा E=mc² त्याचं इक्वेशन प्रूव झालं। इन्होंने कितना काम किया है, कितना काम किया है जो हम उसका 1% भी हम नहीं कर रहे। सो सैल्यूट टू हिम। नाउ लेट्स कम टू द नेचर ऑफ रिसर्च। ये आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पॉर्टंट है। संशोधनाचं संशोधन कशा पद्धतीचं असावं, 5 फैक्टर्स है और एक फैक्टर के सब फैक्टर है। जब भी हमने देखा था सिस्टमॅटिक, ऑर्गनाइज और सिस्टमॅटिक। सिस्टमॅटिक म्हणजे काय? नियोजन करा, शोधा, डिझाइन करा रिसर्च, तुमचा डेटा कलेक्ट करा आणि इव्हॅल्युएट करा। ये इसी लाइन में होना चाहिए। कई बार लोग पहले डिजाइन कर लेते हैं, कई लोग पहले डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। वैसा मत कीजिए। जो लोग अभी अभी चालू कर रहे हैं अपना रिसर्च, गो विद दिस कि क्या प्लान है, क्या आपका जियोग्राफिकल टेरिटरी होगा, कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, कितना सैंपल होगा, वो पूरा प्लान में है। आइडेंटिफाई, जो हम आगे बात करूंगा, आपके पैरामीटर, डिपेंडेबल एंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर। फिर आपको वो रिसर्च को किस तरीके से डिजाइन करोगे। इट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक, रिसर्च डिजाइन, जिसमें आपका मेथड आएगा, आपका नंबर ऑफ सैंपल्स आएगा, मेनी इश्यूज विल कम। देन हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आप प्राइमरी लोगे, फोकस ग्रुप डिस्कशन करोगे, ईमेल क्वेश्चनर करोगे, एन नंबर ऑफ वेज आर देयर टू कलेक्ट एंड देन इवैल्यूएट। व्हाट इज इंपॉर्टंट हियर इज अ लॉजिकल, तर्क त्याच्यात असणं आवश्यक आहे। तर्क कसे आणायचे? जे काही तुम्ही प्रोसिजर केल्या आहेत संशोधनामध्ये, त्या प्रोसीजरला एग्जामिन करायचं। जिस तरीके से आपने सपोज डिजाइन किया है, जिस तरीके से आपने पैरामीटर सिलेक्ट किए, जिस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट किया है, उसको मिलाकर, एग्रीगेट कराकर आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट डाल सकते हैं कि given the specific nature of my design, given the specific parameters researcher have taken and the methodology has adopted, the researcher hereby conclude that the outcomes of the study are as follows. That is a logical argument because you have taken a base of the above parameter to evaluate. आप अगर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो नेचुरली कौन से तरीके से किया एक्सपेरिमेंट, कौन से इनपुट मटेरियल यूज किए, कौन से कंज्यूमेबल यूज किए, कौन से मेजरमेंट किए, उसका कैलिब्रेशन क्या था, आप उसमें इवैल्यूएट करके कंक्लूड कर सकते हो। हे सगळ्यांना करणं कंपल्सरी है। देन इम्पिरिकल, जो प्रीवियस स्लाइड पे मैंने बोला था, यू टेक अ डेटा एंड बेस्ड ऑन डेटा यू मेक अ डिसीजन, जिसको हम ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं या लेबोरेटरी में कंट्रोल एनवायरनमेंट में कलेक्ट किया हुआ डेटा भी बोल सकते हैं, राइट? सो एम्पिरिकल, विच इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिसर्च दैट वी कंडक्ट अंडर एकेडमिक रिसर्च। एंड देन रिडक्टिव। रिडक्टिव में हम क्या करते हैं? वी एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप फ्रॉम द establish the
general relationship from the data that we have. Say you have 4 parameter and you are testing the dynamics of one parameter with rest of 3 parameter. Then you are testing 2 with other 2, 3 with 1 and 1 with 3, vice versa, right? So when we are establishing general relationship, we have to be little bit cautious to what extent we are establishing the relationship. ये मैं आपको आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा. Because मुझे ये बताइए स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप हम किस चीज पे क्वांटिफाय कर सकते हैं? माझ्या 2 पॅरामीटर मध्ये स्ट्रेंथ असेल तर ती मी कोणत्या पद्धतीने क्वांटिफाय करू शकतो? काही देऊ शकाल तुम्ही उत्तर? काय करतो आम्ही रिलेशनशिप बघण्यासाठी 2 पॅरामीटरचा? एनी आयडिया? वी ट्राय टू सी दी कोरिलेशन, है ना? कोरिलेशन म्हणजे आता समजा 1:30 वाजता माझा क्लास संपला आणि मी लगेच एक पोल घेतला तुमच्याकडनं, तुम्हाला किती कळलं? मी पोल सायंटिफिक पद्धतीने घेतला आणि मला कळलं की माझ्या 3 तासामध्ये तुमचं लर्निंग कोरिलेशन हे 45% होतं. I will quantify that. So in a similar way, when you have the various parameters under your study, you tend to establish the relationship, but you have to be extremely cautious. वो मैं आपको आगे बताऊंगा. इसमें honest mistakes होती है कैंडिडेट से. चलो मैं अभी बताता हूँ. अब से फॉर एग्जाम्पल एक वाइवा में मैं गया था, इकोनॉमिक्स का था. वो लड़की का था, लड़की एग्जामिनर कोल्हापूर से आया था, धुक्काला था, विद्यापीठातली वीज गेली होती, मेचा महिना होता, सगळे त्रासले होते, पण ठीक आहे. त्या मुलीने काय केलं होतं, व्हॉट शी सेड दॅट दी राइज इन डिस्पोजेबल इनकम, मान लो कल मैंने आपका पगार डबल कर दिया तो आप क्या करोगे? काय कराल तुम्ही? अगर मैंने कल आपका इनकम डबल कर दिया तो आप स्पेंड मोर, सेविंग Spend डबल हो जाएगी सर. सेविंग डबल होगी और बताओ. और एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा सर. एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. बिग बिलियन डे में ऑनलाइन फ्लिपकार्ट उस पे जाओगे, अननेसेसरी खर्च तुमचा वाढेल. याच्यात अजून काय वाढेल माहिती का? युअर कन्झम्पशन ऑफ स्वीट, तुमचं गोड खाणं वाढेल. आता मला तुमचं वय तर माहित नाहीये, मी 51 वर्षाचा आहे. मला आठवतो आम्ही लहान असताना हार्डली महिन्यातनं एकदा गोड बनायचं, तेही एखादा न सांगता आलेला पाहुणा आला की खूप आनंद वाटायचा, कारण गोड खायला मिळायचं. आता पाहुणा येणार म्हटल्यावर लोकांच्या कपाळावर आठ्या पडतात, तो वेगळा भाग आहे. पण आजच्या परिस्थितीत जर मी तुमच्या सगळ्यांच्या घरी आलो आणि तुमचे फ्रीज चेक केले तर मला मोर दॅन 50% लोकांकडे गोड मिळेल. गोड म्हणजे कोणतं? हे हल्दीरामच्या मिठाया. Is it a necessary thing to consume? Of course not. Then why people consume sweet? It is affluence. म्हणजे तुम्ही बघा, हल्दीराम ज्याचं सरोज किंवा सुदामा टॉकीज जवळ एक रेस्टॉरंट होतो, आज तो किती मोठा झालाय. का? कारण ग्राहक लोक खात आहेत त्याच्या मिठाया, नमकीन, सो अँड सो ऑन. इज इट अ नेसेसरी थिंग? नाही. म्हणजे आमच्याकडे पुतण्या आहे, मी तर लग्न केलं नाहीये. त्या दिवशी मी पुतण्याला म्हटलं तुझ्या आईला सांग कच्चा चिवडा बनव, तर त्याला तो शब्दच कळला नाही की कच्चा चिवडा काय असतो. मी त्याला म्हटलं अरे बाबा, आम्ही लहानपणी वर्तमानपत्र घ्यायचो, पोहे टाकायचो, कांदा, कोथिंबीर, शेंगदाणा तेल आणि दाणे टाकून हाताने मिक्स करून खायचा कच्चा चिवडा. त्या नवीन जनरेशनला माहित नाहीये. एनिवे, सो when we are so what that girl did, she said that rise in disposable income leads to increased consumption of sugar, which was correct. ते तिच्या थिसिस मध्ये ती रिलेशनशिप होती. तिला हे कळलं की लोक पैसा जास्ती आल्यावर किंवा उत्पन्न जास्त वाढल्यावर गोड जास्त खातात आणि गोड जास्त खाल्ल्याने वजन वाढतं. तिने हा तिसरा. सो ए लीड्स टू बी, बी लीड्स टू सी. तिने काय चूक केली? तिने ही चूक केली की therefore A leads to C. That means rise in disposable income leads to increase in the weight. त्या एक्झामिनरला ते पटलं नाही. आता एक्झामिनर असतो, त्याचा आदर ठेवावा लागतो. मग तिथे झालं डिबेट. मग शेवटी जे काही लोक तिथे होते त्यांनी तिला करेक्ट करायला सांगितलं की इट वॉज अ ऑनेस्ट मिस्टेक.
So whenever you establish relationship, be extremely careful. A leads to B is correct, B leads to C is also correct, but that does not mean A leads to C. तो रिडक्टिव में आपको थोड़ा कॉशियस रहना है. कई बार कैंडिडेट को क्या लगता है, अरे मेरा डेटा हो गया, एनालिसिस हो गया, मैं कंक्लूजन ऐसे ही लिख दूंगा. ना 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 ना, आपका वो अहम चैप्टर है. आपने चैप्टर 1 से लेके पूरे चैप्टर तक अच्छा काम किया और आपने कंक्लूजन में ही आपने गड़बड़ कर दी, आपका पूरा थीसिस पानी में जा सकता है. काम डिग्री मिलेगी वो बात अलग है, बट अगर कोई एग्जामिनर गलती से पढ़ लेता है आपका वो चैप्टर, मैं आपको बताता हूँ एग्जामिनर क्या पढ़ता है. एग्जामिनर आपका मेथोडोलॉजी का चैप्टर पढ़ेगा, एग्जामिनर आपका डेटा थोड़ा बहुत देखेगा, और एग्जामिनर कंक्लूजन रिकमेंडेशन का चैप्टर पक्का पढ़ेगा, और लिटरेचर का भी रिव्यू का चैप्टर पढ़ेगा कि आपने लिटरेचर रिव्यू सही किया है कि नहीं. क्योंकि उसके पास 10 थीसिस आते हैं, उसके पास टाइम नहीं रहता, बट वो जब आता है आपका एग्जामिनेशन लेने तो पक्का ये 3-4 चीजें पढ़ के आता है. एंड देन लास्ट वन इज अ रिप्लीकेबल, जहाँ पे एक्शंस आर रिकॉर्डेड. मतलब आप अगर से फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, या आप किसी कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, जैसे आप अगर बीबीसी देखते होंगे तो वो लेडी का नाम मैं भूल गया, एक तो एटनबरो है और एक फ्रेंच लेडी है, उसने पूरा लाइफ चिंपांजी के ऊपर काम किया है. और एंटायर लाइफ वाज डेडिकेटेड टू स्टडीइंग चिंपांजी. तो वो रिकॉर्ड करती है कि चिंपांजी लैंग्वेज कैसा सीखता है, रिस्पॉन्ड कैसे करता है. So in physical environment also, if you are taking any, if you are observing any action, you may tend to record it. अगर for example मैं ट्रैफिक के डिसिप्लिन के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और मैं नागपुर के हर चौक में जाके देखता हूँ कि सिग्नल लाल होते समय कितने लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं, तो मैं फोटो भी लूंगा, वीडियो रिकॉर्ड भी करूंगा, और मेरे कागज पे भी लिखूंगा कि 15 लोग खड़े थे, 3 लोगों ने सिग्नल तोड़ा, तो 3 में से एक महिला थी, 2 पुरुष थे, ऐसा इस टाइप का. सो एक्शंस आर रिकॉर्डेड, इसको रिप्लीकेबल. ये क्लियर हुआ? सिस्टमैटिक, लॉजिकल, एम्पिरिकल, रिडक्टिव एंड रिप्लीकेबल. अब मैं आपको एक तरफ लेके चलता हूँ. ये 2018 का स्टडी है. अभी देखो, रिसर्च इज व्हेरी सिंपल. तुम्ही तसं बघितलं ना, मला संशोधनापेक्षा अजून सोपा विषय दुसरा अजून आढळलाच नाही. At the same time, it can be highly misleading if we don't know how to interpret it. So, the more easy is your topic, more complicated is to interpret. More difficult is your topic, more easy to interpret. आता या उदाहरणावरून आपण बघू. 2018 के पहले क्वार्टर में एक स्टडी पब्लिश हुई जर्नल ऑफ नेचर कम्युनिकेशन में. ये यूके का है, इंग्लैंड का. और वो स्टडी में ये कंक्लूड किया गया था, ये फाइंड किया गया था कि चश्मा लगाते हैं, जो लोग चश्मा लगाते हैं उनमें हायर लेवल ऑफ इंटेलिजन्स होता है. म्हणजे चष्मा लावणारे लोक हे इंटेलिजन्स एवरेज पेक्षा जास्ती असतात. अब उन्होंने क्या किया, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में ये लार्जेस्ट रिसर्च किया गया, जिसमें 3 लाख लोगों का सैंपल लिया गया बिटवीन द एज ऑफ 16 to 103. और वो लेते समय उन्होंने उनका कॉग्निटिव फंक्शन एंड जेनेटिक डेटा भी लिया, राइट. और स्टडी कंडक्ट किया कि वाकई में चश्मा लगाना ये इंटेलिजेंस का साइन होता है कि नहीं, और उन लोगों को उनका कॉग्निटिव फंक्शन भी स्टडी करना था. तो एनालिसिस में उनको पता चला देयर इज अ सिग्निफिकेंट जेनेटिक ओवरलैप बिटवीन cognitive function, reaction time, and many health variable including eyesight, hypertension, longevity. मतलब जो लोग चश्मा पहनते हैं उनको ये वेरिएबल में सिग्निफिकेंट जेनेटिक ओवरलैप था. और जो लोग इंटेलिजेंट थे उसमें से ये भी पाया गया कि इनको वैसी जीन्स मिली होगी. तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको इंटेलिजेंट होने के लिए चश्मा लगाना है. तो उनको ये भी पता चला कि 30% जो थे उनको जीन मिली. अभी जर आई वडील हुशार असतील तर मुलगा हुशार निघतो, आपण जेनेटिकली हुशार, तर 30% त्यांना तेही कळलं.
गॉट इट? अब आगे चलते। अब ये देखो, उनको ये भी पता चला कि बीइंग मोर इंटेलिजेंट मे बी लिंक टू पुअर आईसाइट। अब मेरे को एट द एज ऑफ 13 चष्मा लगा. अच्छा, उस समय तो टीव्ही था नाही हमाऱ्या. मला अंधारात वाचायची फार सवय होती. माझी आयसाईट तेव्हा खराब होती. मी उंच असल्यामुळे झेडपीच्या शाळेत शिकलो तो मला मागच्या बेंचवर बसायचे. त्यावेळेस लाईट वगैरे कौलं असायची, लाईटची सुविधा नसायची, ब्लॅकबोर्ड असे होते. तर मला मागून मास्तर काय लिहितोय ते कधीच दिसलं नाही. तर मी एकदा कंप्लेंट केली, तर ते म्हणे एकदा तू आयसाईट चेक कर. नंतर मग त्यांनी मला पहिल्या बेंचवर कोपऱ्यात बसायला जागा दिली, कारण मला काही दिसायचं नाही. सो इट डझंट मीन दॅट बीइंग इंटेलिजंट you have to wear it, but you may have a poor eyesight. At the same time, you can also have a lot of positive health benefit. तुम्हारी eyesight खराब है इसका मतलब बाकी health benefit तुम्हारे कमजोर नहीं हो सकते. There could be positive health benefit. So researchers have found that there is a negative correlation between cognitive function and number of health problems, including angina, lung cancer, and depression. So researchers they conclude that no, it is not a positive correlation, but it is a negative correlation. That means those who have poor eyesight or those who are wearing eyeglasses, they do not necessarily have these so-called inputs, right? So it is important to remember that these are simply correlation and not a conclusive link. मैं आप सभी को दरख्वास्त करता हूं, कोरिलेशन हे फक्त स्ट्रेंथ दाखवतो. कोरिलेशनची व्हॅल्यू काय असते साहेब? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ कोरिलेशन? Not more than one. Not more than 1. Okay, anything else? Or how do we Between 0 and 1. between 0 and 1? Okay, so मैं अभी आप सभी को करेक्ट करता हूं. कोरिलेशन की वैल्यू होती है -1 -1 to 1. -1 तुमचा 1 to डावीकडे, 1. 0 तुमचा मध्ये आणि +1 तुमच्या उजवीकडे. सो कोरिलेशन इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन -1, 0 and +1. सो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स आपका कोरिलेशन आया 1 एंड स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन मतलब आपका वैल्यू आया -1. अगर आपका वैल्यू -0.3 आया तो माइल्ड निगेटिव कोरिलेशन, 0.5 के ऊपर मॉडरेट निगेटिव और +0.5 आया तो मॉडरेट पॉजिटिव. अब कोरिलेशन से हम कंक्लूड नहीं कर सकते. मोस्ट इंपॉर्टेंट, they found out that how we measure the intelligence, because intelligence is subjective. मैंने अगर वनीता बेले को पूछा a + b + c + d ब्रैकेट टू द पावर 4 कितना है, और वनीता बेले ने मेरे को तुरंत उत्तर दिया, तो क्या मैं वनीता बेले को इंटेलिजेंट मानूंगा? ना. एक सवाल का जवाब देने से मैं इंटेलिजेंट नहीं मान सकता. सो इंटेलिजेंस इज सब्जेक्टिव. नाउ द क्वेश्चन केम, हाउ डू वी मेजर इंटेलिजेंस? तो यू विल टेल मी सर वी मेजर द EQ. अगर उसका EQ सॉरी IQ इज इमोशनल क्वेश्चन, IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन मेजर करा. सो वो स्टडी में ये पता चला कि देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस दैट वेयरिंग ग्लासेस, whether you need them or not, make people think you are more intelligent. गरज नसताना सुद्धा लावलेला चष्मा लोकांवर असं इम्प्रेशन टाकतो की हा व्यक्ती हुशार आहे. नंबर ऑफ स्टडी हॅव फाउंड दॅट people those who wear glasses are perceived as smarter, more dependable, industrious and honest. हेच द रिसर्च मधनं निघालेलं आहे. सो कमिंग बॅक टू द कोरिलेशन, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्ही कोरिलेशन वरनं कन्क्लुजन करू शकत नाही. आणि मला हे केव्हा कळलं, जेव्हा महाराष्ट्रातले काय भारतातले मी म्हणेल सगळ्यात उत्कृष्ट स्टॅटिस्टिक्स शिकवणारे शिक्षक नागपूरला आले होते आणि मी त्यांच्या क्लासमध्ये प्रश्न विचारला. त्यांनी त्याचं उत्तर खूप चांगलं दिलं मला आणि त्यांनी मला सांगितलं, निखिल 100% चूक आहे.
तुम्ही को रिलेशन वरनं काहीच कन्क्लूड करू शकत नाही. पण आपण आपल्या पीएचडी थिसिस मध्ये काय करतो, आपण कोरिलेशन कोइफिशियंट काढतो सीओसी, आणि सीओसी वरनं आपण आपला हायपोथेसिस ऍक्सेप्ट किंवा रिजेक्ट करतो. हे अकॅडमिकली ऍक्सेप्टेबल आहे, मी हे नाही म्हणत हे चूक आहे, पण तुम्ही 100% खात्रीने त्याला प्रूव्ह करू शकत नाही. अँड दॅट इज अ ब्युटी ऑफ रिसर्च. If only one statistical test can lead you to a acceptable conclusion, that doesn't mean you are 100% accurate or correct, right? So हमें ये देखना है कि बरं मला हे सांगा, कोरिलेशन कोणी शोधलं? Who invented कार्ल correlation? पियर्सन सर, कार्ल Very good. पियर्सन. व्हेरी गुड. कार्ल पियर्सन कोइफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, ज्याला आपण KPCOC वापरतो. आमच्या MBA मध्ये आम्हाला स्टॅटिस्टिक्स शिकवताना KPCOC शिकवावा लागतो आणि फायनान्स मध्ये वापरावा लागतो, राईट? सो इट इज ओनली टेलिंग यू द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू पैरामीटर. से फॉर एग्जाम्पल, मेरी सोच और प्रणाली चौधरी की सोच एक जैसी है तो हमारे में पॉजिटिव कोरिलेशन है, पर मेरी सोच और मृणाली मनोहर की सोच अगर अलग है तो हमारे में निगेटिव्ह कोरिलेशन आहे. आता मी काही लग्न केलं नाही, पण तुमच्यापैकी ज्यांनी चुकून लग्न केलं असेल तर आपल्याकडे लग्न करायच्या आधी आपण काय बघतो? पत्रिका. आणि पत्रिकेत काय बघतात? गुण. काय ते 35-36 गुण असतात ते बघतात आणि ते मॅच करतात की 27 मॅच आहेत, 28 मॅच आहेत एकूण. व्हॉट डज इट टेल यू? इट इज नथिंग बट अ कोरिलेशन. आता मला हे सांगा, तुमचा नवरा किंवा तुमची बायको जर तुमचे 36 पैकी 36 किंवा 35 पैकी 35 गुण जर मॅच झाले असतील तो तुम्हाला टाका नहीं भिड़ता क्या? तुम्हारे झगड़े नहीं होते क्या? बिल्कुल होते होगे. मग पत्रिका मिळवून लग्न करणं म्हणजे काय? मग ते फक्त बघणं की यांचं कोरिलेशन, जे काही स्टार प्लॅनेट आहेत तुमच्या, मी याच्यावर विश्वास ठेवत नाही म्हणण्यापेक्षा माझा कमी आहे, पण ॲस्ट्रॉलॉजी इज अ सायन्स इटसेल्फ, सो आय कांट डिनाय दॅट. सो इट टेल्स यू दी कोरिलेशन. मुलीच्या किंवा मुलाच्या पत्रिकेत जर मंगळ असेल तर तिचं लग्न होऊ शकत नाही किंवा तिने मांगलिक श्री सोबतच लग्न करावं, हे सुद्धा चुकीचं आहे. कारण माझ्या अनेक मैत्रिणींचे लग्न नॉन मांगलिक मुलांसोबत झाले आणि त्यांचा संसार सुखाने चालू आहे. सो anyway, that's a different matter. So point I'm trying to say is that correlation is not conclusive. As a researcher, you have to keep that in your mind day and night. You can't conclude with high level of confidence level that yes, this is it. No, it may not. It should not rather. कळलं? थोडं आता पुढे जाऊ. तुमच्यापैकी इथे कोणी कम्प्युटर सायन्स वगैरे इंजिनिअरिंगचे लोक आहेत का? IT वगैरेचे लोक आहेत काही? कम्प्युटर सायन्सचे लोक आहेत का इथे? सायन्सचे सांगा मला, आहेत का? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. सो जस्ट ये मैंने एक बार एक बड़े ऑटोनोमस डीम यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था, इसलिए डाला है. ऐसा नहीं है कि ये केवल कंप्यूटर वालों के लिए या किसी और के लिए नहीं है, बट एक जनरल आई विल एक्सप्लेन यू. जब भी आप, स्पेशली साइंस के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जब भी आप कोई भी टॉपिक रिसर्च का निकालोगे, सिलेक्ट करोगे, तो आपको लैंडस्केप देखना है. तो से फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं. कंप्यूटर साइंस में 2007 तक कंप्यूटिंग मेथड हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, मैथमेटिक्स ऑफ कंप्यूटिंग हो गया, ये पूरे पीक हुए. कौन सा फील्ड बढ़ा? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. ये जो नीचे का लाइट येलो है ना, यहाँ ये बढ़ा, राइट? आपका ब्लू कलर सॉफ्टवेयर, ये भी थोड़ा बढ़ा रिलेटिवली, बट 2008 के बाद ये धीरे धीरे नीचे आए. साइंस के लोगों को उसी फील्ड में रिसर्च करना है जो अप टू डेट है, जो आने वाला है, जो अब तक आया नहीं है. अब ये कैसे करना है, इसका आगे का आपको एग्जांपल देता हूँ. ये दूसरा है, ये जो पहला है ना, ये ACM, ये ऑनलाइन आपको मिलेगा. ये फ्रीक्वेंसी बताता है कितना रिसर्च हुआ है. ये डेटा पूरा ग्लोबल डेटा होता है और ये फ्रीक्वेंसी बताता है IEEE की वेबसाइट से. तो आप देखोगे कंप्यूटर में मॅक्सिमम रिसर्च हुआ है अल्गोरिदम, याला लक्ष द्या, या रंगाला.
देन डेटाबेस मैनेजमेंट, और ये आपका आर्किटेक्चर, राइट, एंड देन ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन साइंस। ये मेजर फील्ड है जहाँ पे, और ये 2010 का डेटा है, वो अपडेटेड डेटा अभी तक दिया नहीं है उन लोगों ने। सो दिस इज अ टॉपिक यू हैव टू सिलेक्ट। नाउ बिफोर सिलेक्टिंग अ टॉपिक, ये वेब बनते हैं, स्पाइडर वेब जिसको हम बोलते हैं। जितना डॉट जितना बड़ा और जितने उसके लिंकेजेस है, उतना वो इंटरवोवन ऑफ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। सो 1995 का एक एग्जांपल उन्होंने दिया था कि तब पहले विंडो आया, मल्टीमीडिया आने का था, आ रहा था, सिक्योरिटी बिकेम अ बिग इशू, तो सिक्योरिटी वाज अ प्राइम थिंग, टूल्स फॉर सिक्योरिटी, एंड देन यूजेबिलिटी टेस्टिंग, मोबिलिटी, एनोनिमिटी, ऑथेंटिकेशन, ये उसके सब थे। जब मल्टीमीडिया क्लस्टर आया तो वर्ल्ड वाइड वेब टेक ऑफ हुआ था, राइट, इंटरफेसेस की बात हो रही थी, यूजर इंटरफेसेस कैसे होने चाहिए। तो साइंस के लोगों को अगर अपडेटेड टॉपिक लेना है तो ये आपको ऑनलाइन बहुत ऐसे पोर्टल्स है जो आपको बताएंगे। इवन आप अगर वर्ल्ड वाइड वेब 2001 का लोगे एज कंपेयर टू 1995 मल्टीमीडिया क्लस्टर, इंटरफेस डिजाइन आ गया आपका, डेटा स्ट्रीमिंग आ गया, सिक्योरिटी आ गया, ई कॉमर्स आ गया। वैसे ही आप इंटरनेट में लोगे तो राउटिंग, आर्किटेक्चर, प्रोटोकॉल, अनेक गोष्टी झाल्या आहेत। सो दिस इज एट द फ्रंट एंड, सायन्स ऑलवेज लीड्स। तो आपको इस टाइप का आर्किटेक्चर दिखेगा कि किस फील्ड में रिसर्च अब कहाँ हो रहा है, दैट यू कैन फाइंड। और साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इनके लिए एक अलग होता है। सो दे आर मोर डोमेन स्पेसिफिक, जियोग्राफी स्पेसिफिक, मोर प्रॉब्लम। जैसे हमारे कई लड़के लड़कियों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर किया, कई हमारे एमबीए और एग्रीकल्चर के लोगों ने ये किसान बीमा जो है उसके ऊपर किया, राइट। सो ऑफ कोर्स दे आर आल्सो इक्वली चैलेंजिंग, बट रिसर्च आपका करंट होना चाहिए। बट आपका आरआरसी ये नहीं बोलता है कि आप 1950 के टॉपिक पे रिसर्च मत करो, आप कर सकते हो, बट आपका रिसर्च अगर करंट होगा तो वो एकेडमिक्स में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए समर्थ रहता है। हा महत्वाचा मुद्दा आहे, संशोधन कसं असावं ते स्मार्ट असावं। एस इट हैज टू बी स्पेसिफिक। जितना स्पेसिफिक आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, उतना आपका काम करने का तरीका आसान होगा। अगर आपका टॉपिक ही गड़बड़ में है, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही गड़बड़ में है, तो कहीं न कहीं स्पेसिफिक इशू से आप डाइल्यूट हो जाओगे और आपके फाइंडिंग्स, आपके रिकमेंडेशन अप टू द मार्क नहीं आएंगे। अब सवाल ये आता है कि आप बोलोगे सर हमारा टाइटल तो फाइनल हो गया, नो डाउट अबाउट इट, इट्स ओके। आरआरसी का काम ही आपका टाइटल फाइनल करना, बट आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड जितना आप उसको नैरो डाउन कर सकते हो, नैरो डाउन किस कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजाइन ऑफ द मेथोडोलॉजी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा कलेक्शन, those two things are important। क्योंकि आप अगर बहुत ब्रॉड डेटा लोगे, हाँ, जैसे मेरे एक स्टूडेंट थी, मेरी मतलब मैं गाइड नहीं हूँ, मेरे पास आई थी एक सवाल पूछने, क्वेश्चनेयर लेके आई थी। किती असतील तिच्या प्रश्नावलीमध्ये प्रश्न, 227। मी रागवलो तिला, टॉपिक दाखव काय आहे तुझा। ते करत करत 4 तासामध्ये आम्ही 227 वरनं 38 वर आणलं मी तिला। मग तिला कळलं की शी वॉज unnecessary collecting data that she did not want। तो जिन लोगों ने क्वेश्चनेयर बनाया है पर अभी भरा नहीं है, जो लोग बनाना चाहते हैं, वो इस चीज का ध्यान रखो। सबसे पहले कागज पे 2 कागज लो, एक A4 पे आपका टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, दूसरे A4 पे आपका हाइपोथेसिस, जो भी 5, 6, 7 होगे वो, और वही ध्यान में रख के आप आपका क्वेश्चनेयर बनाओ। अदरवाइज कैंडिडेट एक्स्ट्रा एफर्ट लेके अननेसेसरी इंफॉर्मेशन गैदर करता है। आपको डेटा क्यों चाहिए? टू प्रूव योर हाइपोथेसिस। सो आपका डेटा हैज टू बी सोनली कलेक्टेड इन कॉन्टेक्स्ट द हाइपोथेसिस पीरियड, नथिंग एल्स। बट आपके मन में अभी डाउट आ रहा है, सर मेरा हाइपोथेसिस गलत हो सकता है। अब आपको काम करते करते अगर पता चला कि आप और एक आधा हाइपोथेसिस जोड़ सकते हो,
kindly do that. Kindly inform your guide in writing via email or in a copy of letter. आपको वो permission है. You do not have permission to delete your hypothesis. RRC ने आपको अप्रूव किया है. आप कोई भी सिनॉप्सिस में से कोई भी चीज काट नहीं सकते, बट आप ऐड कर सकते हो और वो ऐड कीजिए, डिफेंड कीजिए आपके गाइड के सामने आपको वो ऐड क्यों करना है. एक बार आपका गाइड ओके हो गया तो वो हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर सकते हो. सेकंड, मेजरेबल. यहाँ पे आता है प्रॉब्लेम. जेव्हा येवले सर प्र कुलगुरू झालेत आणि येवले सरांनी पीएचडी सेलचा चार्ज घेतला त्यावेळेस बऱ्याच गोष्टी बाहेर आल्यात, म्हणजे बऱ्याच गोष्टी चांगल्या झाल्या की प्रत्येकाला हायपोथिसिस टाकणं त्यांनी कंपल्सरी केलं. आता याच्यामध्ये बिचारे हिस्ट्री आणि लिटरेचर आणि आर्ट वाले लोक मला म्हणतात, सर आमचं तर डिस्क्रिप्टिव्ह आहे, आम्ही हायपोथिसिस कसं टाकू. आय टोटली ॲग्री विथ दॅट, बट टू मी रिसर्च हैज टू बी क्वांटिफाइबल, मेजरेबल. आप अगर मेजर, और ये स्पेसिफिकली नॉन साइंस वालों के लिए ज्यादा अप्लीकेबल है, साइंस में तो आप मेजर करते ही हो, तो जितना हो सके आपको करना है. मुझे अभी मालूम नहीं कि येवले सर जाने के बाद क्या हुआ है, बट आई एम श्योर आप सभी लोगों को हाइपोथेसिस डालना कंपलसरी किया होगा और वो अच्छा है. अब उसको टेस्ट कैसा करना वो एक डिफरेंट मैटर है, वो हम थोड़ा आगे उसकी ब्रीफ चर्चा करेंगे, बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी लॉट ऑफ अदर फैकल्टीज कमिंग टू एड्रेस दोज इश्यूज. थर्ड, अचीवेबल. विद इन अ स्पैन ऑफ 5 ईयर आपको आपका रिसर्च कंक्लूड करना है. आप अगर वो कर नहीं पा रहे होगे तो फिर आपका टॉपिक गड़बड़ी में है. फोर्थ, रिलीवेंट, जो मैंने अभी बोला. जैसे जब भी किसने बोला कि जेंडर इश्यू है विदर्भ में, येस है. आता जेंडर इश्यू मध्ये गंमत काय होतं, 1970-80च्या दशकात आपल्याकडे हुंडाबळीची समस्या होती. आता कोणती समस्या आहे हो जेंडरशी? What is the issue that we are facing today about the gender? सांगा बरं, आपण काय फेस करतो आता जेंडरला? जेंडर इनइक्वालिटी. करेक्ट. इनइक्वालिटी, Identity crisis. आयडेंटिटी क्राइसिस, मी टू, सेक्शुअल हरासमेंट, या आता नवीन गोष्टी आहेत. बट हैविंग सेड दैट, अगर कोई रिसर्चर मेरे पास आता है और वो बोलते कि नहीं नहीं हुंडाबळी आहे, रिपोर्ट होत नाही आहे बरं का, मी हे नाही म्हणत हुंडाबळी संपल्यात म्हणून, पण त्याची तीव्रता आता कमी झाली आहे कारण आपल्याकडे आता कायदे आलेले आहेत. राइट. सो इट हैज टू बी रिलीवेंट वॉट एवर यू डू. मतलब जो मैंने साइंस के बारे में जो आपको 2 डायग्राम बताई थी कंप्यूटर साइंस की, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ये सब में अभी जो रिलीवेंट टॉपिक चल रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है, पॉवर्टी एलिवेशन हो गया है ना, तो वो आज के कॉन्टेक्स्ट में वो टॉपिक रिलीवेंट होना चाहिए. एंड जस्ट लाइक अचीवेबल, योर रिसर्च हैज टू बी टाइम बाउंड. तय समय सीमा में वो आपका कार्यक्रम खत्म होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा. सो काइंडली मेक श्योर ये 5 क्राइटेरिया आपका थीसिस एड्रेस करता है. नाउ जैसे कि हमने प्रीवियसली भी देखा, मोटिवेशन फॉर रिसर्च is to find solution to a problem, but after making deep analysis of what relevant factor, conducting studies of relevant factor, right? So in general, a research is a method designed to ensure that whatever information you collect or obtain is reasonable and supported by quantitative and qualitative data that involves a systematic process. अगर आपके पास रीजनेबल इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जो डेटा से सप्लीमेंटेड नहीं की गई है, और जो सिस्टमैटिक प्रोसेस से अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो आपका रिसर्च गड़बड़ में आ सकता है. ये कल मैं इसके बारे में बात करूंगा, अभी आपको थोड़ा बताऊं. विच एवर इंफॉर्मेशन यू टेक, प्राइमरी और सेकेंडरी, आई एम टॉकिंग मोर अबाउट दी सेकेंडरी हियर,
it should be credible information taken from a credible website, credible source, credible book, credible journal, credible literature, so on and so forth. Don't go because it is available free of cost. Again, designing a research method, collecting data, हे आपण बघितलं reporting. So, in a short, research would find answer that resolve the uncertainty of a problem. जैसे अभी 2020 में ये जो कोरोना हुआ, तो 2003 में स्वाइन फ्लू आया था. मेरे ख्याल से H5N1 बोलते हैं उसको. तो उस समय रोचे नाम की कंपनी है यूरोप की, मेरे ख्याल से फ्रेंच या स्विस कंपनी है, उन लोगों ने तुरंत एक दवाई बनाई थी, उसका नाम था टेमीफ्लू. और जो कि मैं खुद स्वाइन फ्लू मुझे खुद हुआ था, तो वो मैंने 5 दिन खाई थी वो दवाई. सो मेडिसिन एंड साइंस में इमीडिएट रिएक्शन आता है. बट हैविंग सेड दैट, जब 1980s में HIV एड्स आइडेंटिफाई हुआ, तो दवाई काफ़ी महंगी थी. अब धीरे धीरे हमारे देश में कंपनी है लाइक सिप्ला, हामिद साहब ने उसका जेनरिक वर्जन बनाया, जो आप 30-40 रुपए में ले सकते हो. कैंसर का जेनरिक आया हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर कई चीजें आई है, पोलियो का हमारा इरेडिकेशन लगभग हो गया. तो साइंस स्पेशली हेल्थ रिलेटेड मैटर पे बहुत तेजी से काम करता है, जिससे अनसर्टनिटी खत्म होती है, जो अप्लिकेटरी सायन्स का एक पार्ट आता है. करेक्ट. नाउ सायंटिफिक मेथड जी असते, बिकॉज वी आर कंडक्टिंग, मला 1 मिनिट द्या, पाण्याचा एक घोट घेतो. साइंटिफिक मेथड जो होती है, जो हम सब इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द प्रॉब्लम, दैट मीन्स डिफाइनिंग इट एंड डीलिमिटिंग इट. डीलिमिट का मतलब ये होता है कि हम एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, जिसको कई बार आप लोग लिमिटेशन ऑफ स्टडी कहते हैं. और लिमिटेशन में कैंडिडेट लिखता है, ड्यू टू दी वास्ट जिओग्राफी एंड लिमिटेड टेन्युअर ऑफ 5 years, द रिसर्चर हॅव डिसाइडेड टू. आता माझ्या संशोधनामध्ये मी महाराष्ट्र, गोवा, दक्षिण मध्य प्रदेश आणि मध्य छत्तीसगड मला लिमिटेशन मध्ये द्यावं लागलं की मी जवळपास 18 की 14 महिने फील्ड मध्ये जाऊन डेटा कलेक्ट केला होता. तर मी म्हटलं होतं ही पूर्ण राज्य मी घेऊ शकत नाही, मला एवढा वेळ. आणि एक चीज याद रखिए, आपके 5 साल जो होते हैं ना, उसमें रीजनेबली डेटा के लिए आपको 6 महीने से 12 या 15 महीने तक का टाइम गंवाना चाहिए, खर्च करना चाहिए. राइट. आपका जो एंड काम होगा वो फिर राइटिंग का, इवैल्यूएशन का, कंक्लूजन का, वो एंड काम है. डेटा के बाद आपका दूसरा काम होगा एनालिसिस और कोडिंग, एनकोडिंग, एनालिसिस. तो और पहले 6, 8, 10 महीने आपके लिटरेचर रिव्यू, फाइन ट्यूनिंग, सो एंड सो फोर्थ. तो आप अगर डेटा पे, आपका अगर डेटा एक्सटेंसिव है, तो आपको डिलिमिट करना पड़ेगा डेफिनेटली. नहीं, अगर कहीं ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी में अगर जा रहा है, फिर भी आप उसको डिलिमिट कर सकते हो. तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने के बाद हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करना. काय असतात हो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर दे? सरळ शब्दात सांगा मला. क्या होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल? एनी आइडिया? सर बोला. सर डिपेंडेंट मतलब कि एक टीचर होता है और इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट तो स्टूडेंट होगा टीचर के ऊपर. ओके, जैसा आपका बेटा, आपकी बेटी आपके ऊपर डिपेंडेंट है. फेयर इनफ. हाँ, उस करेक्ट स्टूडेंट होगा. करेक्ट करेक्ट. और कुछ? Dependent variable will be influenced by some other variable, whereas independent variable जो रहेगा, it will not be influenced or affected by other variables. Absolutely correct. Any variable whose value do not change because of other factors is called as independent.
and those whose value change because of outside factor is called as dependent variable. Now take a very simple example. मेरे पास होंडा एक्टिवा स्कूटर है. मैं जब मेरे होंडा एक्टिवा स्कूटर का एक्सेलरेटर 10 डिग्री से ऊपर करता हूं तो मेरी एक्टिवा की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ती है. सो द स्पीड ऑफ एक्टिवा इज डिपेंडेंट ऑन द डिग्री ऑफ एक्सेलरेटर. हायर द डिग्री ऑफ एक्सेलरेटर, हायर विल बी द स्पीड ऑफ स्कूटर. करेक्ट? अगदी सोप्या भाषेत आपल्याला कळलं पाहिजे. आता गंमत काय होते हे बघा. मेनी अ टाइम when we are conducting a study, especially PhD research, we come across multiple variables. Statistics में अगर एक मैं सिंपल वेरिएबल लेता हूं तो मैं उसको यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लेके जा सकता हूं. अगर मेरे पास 2 वेरिएट है तो मैं उसको बाय वेरिएट में लेके जा सकता हूं. और अक्सर जब हम पीएचडी का थीसिस करते हैं और डेटा से डील करते हैं तो हम मल्टीपल वेरिएबल पे काम करते हैं. और इसीलिए मैं आपको बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं की एकदा आज रात्री उद्या सकाळी कागदावर आपल्या हायपोथेसिस मध्ये असणारे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेगळे करून बघा. जितना एफर्ट आप अभी लोगे ना उतना आप कंक्लूजन रिकमेंडेशन में बचोगे. कई बार कैंडिडेट गलती जानबूझ के करता है या ऑनेस्ट मिस्टेक होती है या इग्नोरेंस से वो हो जाती है. ये मत कीजिए. मुझे अगर जनरली कोई वाइवा में पूछता नहीं है ये सवाल, मैंने आज तक तो देखा नहीं, बट अगर गलती से किसी ने पूछ लिया कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था और इंडिपेंडेंट क्या था और क्या रिलेशनशिप आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस आ सकता है. तो एज ए ओनर ऑफ आवर ओन थीसिस वी मस्ट बी एबल टू सेग्रीगेट द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. देखिए, जितना आपका टॉपिक सिंपल होगा उतना डिफिकल्ट उसका इंटरप्रिटेशन होगा. अब अगर मैंने आपको चाय पिलाया, 1 कप चाय पिलाया और मैंने एज ए रिसर्चर आपको पूछा डू यू लाइक द टी, और मैंने आपको ऑप्शन दिए यस और नो. आप में से 60% लोगों ने यस बोला, 40% ने आपको नो बोला. ठीक है. अब मैं दूसरा रिसर्चर बन के आया. अब मैं थोडा, कारण यस नो नी मला काही मिळालं नाही. पीएचडी मध्ये इंटरप्रिटेशन मध्ये येस नो डझंट वर्क, ऑल्दो इट वर्क, पण हसू येतं की यांनी असं का केलं. आता मी थोडा इंटेलिजंट झालो. आता मी लिकार्ट स्केल, लिकार्ट नावाचा एक संशोधक होता सामाजिक, त्यांनी एक स्केल तयार केली आहे. स्ट्रॉंगली ॲग्री, स्ट्रॉंगली डिसॲग्री. लिकार्टच्या स्केल आहे 3, 5, 7, 9 पॉईंट पर्यंतच्या स्केल येतात. आपण एक सिंपल स्केल घेऊ. मधला पॉइंट आहे नो कॉमेंट, सगळ्यात डावाकडचा पॉइंट आहे स्ट्रॉंगली डिसॲग्री, त्याच्यानंतरचा एक पॉइंट आहे समव्हॉट डिसॲग्री, नो कॉमेंटच्या उजवीकडचा पॉइंट आहे समव्हॉट ॲग्री, आणि सगळ्यात उजवीकडचा 5वा बिंदू आहे स्ट्रॉंगली ॲग्री. आता मी हे तुम्हाला दिलं आणि मी तुम्हाला म्हटलं चहा चांगला आहे. तुम्ही या 5 पॉइंटवर उत्तर द्या. आता मिनलनी स्ट्रॉंगली ॲग्री म्हटलं, वनितानी समव्हॉट डिसॲग्री म्हटलं, सोनालीनी नो कॉमेंट म्हटलं. आता मला 30 जणांची प्रश्नावली मिळाली. नाउ द चॅलेंज लाइज इट हाऊ डू आय एनालाइज इट, राइट? नाउ आय हॅव नंबर ऑफ टूल्स टू एनालाइज दॅट अँड इट बिकम्स व्हेरी इझी फॉर मी टू एनालाइज. हा झाला एक भाग. दुसरा भाग आता मी तुम्हाला त्याच्या थोडा डेप्थ मध्ये नेलं. मी जर आता वनिताला विचारलं क्या आप मुझे बता पाओगी कि किस चीज ने ये चाय को अच्छा बनाया या बुरा बनाया? Now as a researcher I wanted to know which are the variable that is affecting the taste of my tea. So I as a researcher I took a pen and pencil and I wrote it down. What can affect? मेरे चाय का टेस्ट 3 चीजों पे डिपेंड होगा. चहाची चव कशावर डिपेंड असते सांगा, एक एक करत सांगत जा. Amount of sugar,
Correct. And how much it is boiled, Very good. tea leaves that are being used, Quality and of tea. quality of tea and quantity of milk and water. Okay. Anything else? और कुछ? अद्रक मसाले. Very Also good. on the अदरक, quality of the इलायची. milk. Quality of इलायची milk. अद्रक मसाला और डाला और कुछ? गवती चहा. गवती चहा टाकला. अजून काही? त्याला चांगलं बॉईल करणं, हीट करणं, अजून? हा. अजून गाढेपणा त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात मिल्क दूध टाकणं. यस. अब देखो. The technique of making it. यस, टेक्निक ऑफ मेकिंग इट. आप उसको 10 मिनट बॉईल कर रहे, 15 मिनट बॉईल कर रहे, 4 बार उसको. अब देखो इसमें और आपने बोलने के बाद और चीजें डाल सकता हूँ मैं. चाय की टपरी पे कौन सा बर्तन होता है? चाय की टपरी वाला क्या यूज करता है? कौन सा बर्तन होता है वो? Aluminium. एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम. Plastic. राइट. हाँ. सो नाउ एज ए रिसर्चर, अभी हमको रिसर्चर जैसा सोचना है. अब मैंने टाइप ऑफ यूटेंसिल डाला मेरे रिसर्च में. स्टेनलेस स्टील जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम जो टपरी पे इस्तेमाल होता है, पुराने टाइम में पीतल का बर्तन अभी भी यूज होता है हमारे घर में, पीतल का बर्तन. आपके नए बर्तन जिसमें कॉपर बेस आता है, कॉपर का, ये हो गए मेरे टाइप ऑफ यूटेंसिल. और आखिरी का मट्टी के पॉट में चाय बन रहा है जो आपको गावठान में दिखेगा. फिर मैं आ गया टाइप ऑफ हीटिंग सोर्स. क्या मैं इंडक्शन हीटर पे बना रहा हूँ? क्या मैं एलपीजी गैस पे बना रहा हूँ? क्या मैं चूल्हे पे बना रहा हूँ? क्या मैं सोलर पे बना रहा हूँ? राइट. अब मेरे पास कितने पैरामीटर हो गए? ये जो आपने बताए प्लस मेरे टाइप ऑफ यूटेंसिल प्लस मेरे टाइप ऑफ हीटिंग मेथड और मेरा टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट. I got at least 30 parameters. Now, I as a researcher, I'm very keen to know what really affects. और ये आपको मिलेगा. प्रश्न हा येतो की हा जो माझा प्रॉब्लेम आहे तर याच्यावर मला प्रश्नावली बनवावी लागेल. कशावर? या 30 व्हेरिएबलवर. आणि तसा प्रश्न विचारून मला इनपुट घ्यावे लागतील माझ्या प्रायमरी डेटामध्ये. आणि एकदा ते आले की स्टॅटिस्टिक्स मध्ये खूप सुंदर कंपोनंट आहे, सुंदर टेस्ट आहे. त्याला म्हणतात प्रिन्सिपल कंपोनंट ॲनालिसिस, PCA. एकदा मी माझ्या डेटावर PCA लावला की मला ते रिझल्ट दिसतात. मग त्याच्यात मला कळेल 30% चव, अद्रक, मसाला, गवती चहा, व्हॉट एव्हर इन्ग्रेडियंट ॲडिशनल. 20% चव डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ युटेन्सिल, 10% ऑन द टाइप ऑफ हीटिंग. अँड दिस इज द ब्युटी ऑफ रिसर्च. तुम्ही त्याला कोणत्या दृष्टिकोनातून बघता, त्याला बघून तुम्ही कसे प्रश्न तयार करतात आणि त्या प्रश्नांचा रिस्पॉन्स कसा घेतात त्याच्यावर तुमचं उत्तर मिळेल. त्याईनी फक्त विचारलंय काऊन बे चाय आवडला का? अबे हो न बे, अबे नाही न बे. त्याला रिसर्च नाही म्हणत, त्याला पोमादेगी म्हणतात वराडी भाषेत. ॲज अ रिसर्चर यू शुड हॅव अ नॅक टू आस्क द क्वेश्चन. प्रश्न विचारणं आणि प्रश्नावली तयार करणं खूप कॉम्प्लेक्स आहे बरं का. म्हणजे तुम्हाला एक चार्ट दाखवेल मी पुढे. एव्हरी स्टेप इन रिसर्च इज व्हेरी डेलिकेट. इट इज लाइक वेविंग अ बनारसी सिल्क साड़ी, बिगिनिंग से लेके एंड तक. जब तक वो साड़ी कटरीना कैफ या दीपिका पदुकोण या सोनाली रंगवीकर पहनती नहीं, तब तक वो साड़ी की ब्यूटी नहीं आएगी. उसको एंड तक उसको रखने का है. ये रिसर्च है. हाँ, त्याच्यामुळे आज रात्री किंवा उद्या सकाळपर्यंत सगळे आपले इंडिपेंडेंट डिपेंड तुमच्या समाधानासाठी पाहून घ्या. देन फॉर्म्युलेशन ऑफ हायपोथेसिस, ज्याला आपण गृहकृत्य म्हणतो. नाउ इंटरेस्टिंगली हम रिसर्च चालू करने के पहले ही उसका एंटीसिपेटेड आउटकम निकाल लेते हैं. हाँ, मैं अमरावती कई बार जाता हूँ. मैं जब निकलता हूँ तो मैं अपने मन में सोच लेता हूँ की मला 2 ते 2.25 तास लागतील. मग त्याच्यामध्ये जर ट्रॅफिक, टोल नाक्यावर ट्रॅफिक असेल किंवा माझी गाडी खराब झाली किंवा अजून काही झालं तर मला त्याच्यापेक्षा जास्ती वेळ लागेल. पण आपण एक बॉल पार्क फिगर धरतो. संशोधन करताना सुद्धा तुमच्या संशोधनाचा अंत कसा होईल याची पूर्वग्रह किंवा पूर्व कल्पना त्या रिसर्चरला असावी.
आणि म्हणून आपल्याला हायपोथिसिस टाकावे लागतात. आणि बरेचदा माझ्याकडनंही चुका झाल्या होत्या माझ्या PhD मध्ये, पण आता जे मी संशोधन करतो ना, आता आम्ही 70% आमचे हायपोथिसिस करेक्ट करायचा प्रयत्न, 100% तर कोणालाच येत नाही. तुमच्या हायपोथिसिस मध्ये चुका असतील, नॅचरल, नथिंग रॉंग, त्याला तुम्हाला कोणी फाशी देणार नाही. पण काम करताना तुम्हाला जर एखादी रिलेशनशिप आढळून आली तर तुम्ही तो एक्स्ट्रा हायपोथिसिस तुमच्या याच्यात टाकू शकता. डेटा बद्दल मी बोललो होतो की जेव्हा तुम्ही सेकंडरी डेटा घेताय त्याची व्हॅलिडिटी इज अ मस्ट. आणि जर तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये डेटा घेताय किंवा तुम्ही क्वेश्चनेअर मधून घेताय त्याची आपल्याला मॅक्सिमाइज करायची आहे व्हॅलिडिटी. कळलं? अनालिसिस करता आपण टूल आणि इंटरप्रिटेशन करता आपण वर्ड वापरू. आता एक्झॅक्टली 12 वाजले. माझ्या टायमिंग नुसार मी आधी हे सगळं एकदा क्लिक करतो. एक 10 मिनिटाचा ब्रेक घ्या. की बरोबर ब्रेकच्या वेळेस ही स्लाइड येते आणि 10 मिनिटानंतर मी तुम्हाला याच्या ज्या शास्त्रीय संशोधन पद्धतीमध्ये कोणत्या स्टेप्स घ्यावे लागतात हे सगळ्यांना माहिती आहे. नथिंग न्यू इन दॅट. मी तुम्हाला एकदा एक्सप्लेन करेल. मी आता हे फक्त क्लिक करून ठेवतो म्हणजे आपण ब्रेक नंतर आल्यावर मी एक 4 मिनिटात तुम्हाला हे समजवेल. 1 मिनिट. येस. 12 वाजून 1 मिनिट झालाय. 2 मिनिटं झाल्यात तर आपण 12 वाजून 15 मिनिटं, नो लेटर देन 17 मिनिटं. ठीक आहे? ओके सर. 10 मिनिटं आहे, सॉरी. हा 12 वाजून करेक्ट 10 मिनिटं. ठीक आहे? ठीक है 12:15 नंतर येऊ नका. 12:15 इज अ लिमिट. ठीक है? ओके थैंक यू सर. ओके. थैंक यू. थैंक यू. फ्रेंड्स मीटिंग को लीव मत करिए, मीटिंग चालू रहने दीजिए, सिर्फ रिफ्रेशमेंट ब्रेक लीजिए 10 मिनट का. डोंट लीव द मीटिंग. ओके.